Hello everyone. So continuing with the geography section, in that we were doing geomorphology. So in geomorphology, our today's topic is geomorphologic or geomorphic processes. Now what is geomorphology? It is the study of nature and the origin of landforms on the earth. Geomorphology क्या है? As the name suggests, geo, morphos and logy. So it is the study of Earth's morphology, that is the physical features of the earth, and logy means study. So it is the study of nature and origin of landforms on the earth. Now what are geomorphic processes? Geomorphic processes are the changes in the configuration of the surface of earth which are brought by the physical stresses and chemical actions on the earth's material, which are caused due to the various forces from within the interior of the earth as well as on the surface of the earth. तो जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेसेस क्या हैं? ये ऐसे चेंजेस है इन द कॉन्फ़िगरेशन, इन द फिजिकल फीचर्स और इन द शेप, साइज और वेरियस फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो किसकी वजह से है? फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस जो कि अर्थ के मटेरियल पे होते हैं। और ये मटेरियल जो चेंजेस है ये कैसे आते हैं? दो तरह की फोर्सेस से। एक फोर्सेस तो वो है जो अर्थ के अंदर से, इंटीरियर से आती हैं, और एक फोर्सेस वो है जो अर्थ के सरफेस पे एक्ट करती है। तो geomorphologic processes क्या है? These are the changes in the configuration of the surface of Earth which are caused by the physical stresses and chemical actions on the Earth's material. Earth's material मतलब rocks वगैरह. So which are because of the two types of forces. One forces, these are within the Earth, that is interior of the Earth, and the second one, they act on the surface of the Earth. So these are the geomorphic processes. Now geomorphologic processes, they are a result of two types of forces: endogenic endogenetic or endogenic forces and exogenetic or exogenic forces. एंडोजेनिक वो है जो अभी हमने पढ़ा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से एक्ट करती हैं, और एक्सोजेनिक वो है जो अर्थ के सरफेस से एक्ट करती हैं। ना एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं उनके कुछ सोर्सेज हैं, उनके कुछ एजेंट्स हैं। So these are called the geomorphic agents or the agents of change on the surface of earth. तो ये कौन कौन से हैं? Rain, frost, waves, glaciers, wind, running water, etc. So these are the geomorphic agents of change on the surface of the earth. Now first one is endogenic forces. तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है? दीज आर द फोर्सेस दैट एक्ट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर से, इंटीरियर जो लेयर्स हमने पढ़ी थी वहां से ये एक्ट करती है, फ्रॉम विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इनके सोर्सेज क्या है इस एनर्जी के? द प्राइमोडियल हीट। जब बिग बैंग के बाद अर्थ बनी थी, अर्थ बहुत हॉट थी, हमने पढ़ा था, तो उस टाइम की जो हीट है अभी भी वो अर्थ के अंदर स्टोर है, इनसाइड द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो वो जो प्राइमोडियल हीट है वो एंडोजेनिक फोर्सेस का सोर्स है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी एंड रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन। जब अर्थ रोटेट करती है तो उसकी जो अंदर की लेयर्स हैं, मेंटल, क्रस्ट, कोर, हमने पढ़ा था, तो वो भी अलग, बिकॉज उनके अंदर का मटेरियल अलग अलग है, उनकी डेंसिटीज अलग हैं, तो वो भी अलग अलग स्पीड से रोटेट करती है, जिनकी वजह से उनमें फ्रिक्शन क्रिएट होती है। So these are the sources of energy for the endogenic forces. तो endogenic forces से change क्या आता है, result क्या है इसका? They result in large scale upliftment or subsidence or folding or faulting. So these are mainly the land building forces. So endogenic forces, they are mainly the land building forces of the earth. Upliftment मतलब large scale में land जो है वो उठ जाएगा ऊपर को, subsidence मतलब वो नीचे को चले जाएगा, और फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। Hence these forces are mainly responsible for the formation of major structural units of the earth's surface. Now we come on to the next forces, which are the exogenic forces. So exogenic forces क्या हैं? These are the forces acting on earth's surface from above the surface. ये
अर्थ के अंदर से नहीं एक्ट करती, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर से एक्ट करती हैं। सरफेस के ऊपर ही इसके एजेंट्स हैं जो हमने अभी पढ़े, जैसे कि रनिंग वाटर, वेव्स, विंड, ग्लेशियर एक्सेट्रा। तो वो सारे जो एजेंट्स हैं इनके, वो एजेंट्स जो हैं वही एक्सोजेनिक फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्हीं से अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंजेस आते हैं। नाउ सोर्सेज क्या है इस एनर्जी के? सनलाइट है और ग्रेविटी है। और ये काम कैसे करता है? थ्रू दिस एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्सेट्रा। तो इसका रिजल्ट क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस से होता क्या है? दे रिजल्ट इन wearing down, that is known as degradation of the relief or topography, and second one is filling up, that is aggradation of the basins. So इससे क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस से मटेरियल की, अर्थ के मटेरियल की डिग्रेडेशन भी होती है, उसके साथ साथ में उसकी एग्रेडेशन भी होती है, मतलब उसका वियरिंग अवे भी होती है और डेपोजिशन भी होती है। So these are mainly the land wearing forces. So exogenic forces are called the land wearing forces, while the endogenic forces are called mainly the land building forces. So hence these forces, they result in the formation of minor topographical features like valleys, caves, waterfalls, etc. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस से माइनर टोपोग्राफिकल फीचर्स आते हैं, वाइल जो एंडोजेनिक थे उनसे major structural units of the earth's surface, they are formed from the endogenic forces. Now we come on to the classification of morphological processes. So this is a big classification. तो इसी क्लासिफिकेशन के जो ये सारे टॉपिक्स हैं, जो इसमें हम लोग हेडिंग्स पढ़ेंगे, वही सारे आगे हमारे टॉपिक्स होंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेसेस को हमने डिवाइड किया है दो टाइप्स में, दो ब्रॉडर कैटेगरीज में, विच आर द एंडोजेनिक मूवमेंट्स विच आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस, एंड एक्सोजेनिक मूवमेंट्स विच आर कॉज्ड बाय द एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स एंड कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट्स। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स हैं जो स्लोली स्लोली होती हैं, वाइल कैटास्ट्रॉफिक इज जो सडनली एकदम से आती है और विजिबल होती है। तो कैटास्ट्रॉफिक में फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स आ गए और वोल्केनिक इरप्शंस आ गए, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स को हमने फर्दर आगे तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज टेक्टोनिक मूवमेंट्स, देन इज द आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स एंड यूस्टैटिक मूवमेंट्स। टेक्टोनिक मूवमेंट्स को फर्दर हमने दो में डिवाइड किया है, दैट इज एपिरोजेनिक फोर्सेस और मूवमेंट्स एंड ओरोजेनिक मूवमेंट्स। तो एपिरोजेनिक मूवमेंट्स जो है वो मेनली होती हैं बिकॉज ऑफ द रेडियल फोर्सेस, और रेडियल फोर्सेस में भी क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होती है जिससे अपलिफ्टमेंट होती है, या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है जिससे लैंड की सबसाइडेंस होती है। तो रेडियल फोर्सेस ऊपर और नीचे की मूवमेंट्स हैं ये एपिरोजेनिक में, वाइल जो ओरोजेनिक है इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगती है। एपिरोजेनिक में रेडियल फोर्स थी, ओरोजेनिक में टेंजेंशियल फोर्स है। तो इसकी वजह से क्या होता है? फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ना फोल्डिंग की फर्दर आगे टाइप्स है, फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड, ओवरफोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, नैप, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे सारा कुछ। और फॉल्टिंग में नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। सो दीज आर द डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स। इसके बाद में हम लोग एक्सोजेनिक मूवमेंट्स की बात करें तो उसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज एग्रेडेशन एंड डीग्रेडेशन। डीग्रेडेशन में वेयरिंग डाउन ऑफ मटेरियल होता है और एग्रेडेशन में उसकी डेपोजिशन होती है। तो डीग्रेडेशन को हमने फर्दर डिवाइड किया है तीन कैटेगरीज में, दैट इज वेदरिंग, इरोजन एंड मास मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट वेदरिंग। वेदरिंग तीन तरह की हो सकती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। फिजिकल वेदरिंग को हमने फर्दर डिवाइड किया है कि वो किस किस तरह से हो सकती है। तो फर्स्ट वन इज क्रिस्टल ग्रोथ से वेदरिंग हो सकती है, और सेकंड इज प्रेशर या थर्मल एक्सपेंशन से वेदरिंग हो सकती है। क्रिस्टल ग्रोथ में भी वाटर क्रिस्टल से हो सकती है या सॉल्ट क्रिस्टल से हो सकती है। और वाटर क्रिस्टल्स को आगे फर्दर डिवाइड किया हमने फ्रॉस्ट शैटरिंग में और फ्रीज थॉ में। ये सारा कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। देन इज द प्रेशर थर्मल एक्सपेंशन में है एक्सफोलिएशन, प्रेशर रिलीज, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। देन बायोलॉजिकल में आता है बायोलॉजिकल एजेंट, फॉर एग्जांपल
ट्रीज उनकी जो रूट्स हैं वो वेदरिंग करती हैं, जब रॉक्स को वो पेनिट्रेट करती हैं, रॉक्स को तोड़ देती हैं, सो उससे हो गया, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो गया, लाइकन से हो गया, और जो बरोइंग एनिमल्स हैं जो मिट्टी में रॉक्स में अ, खोद के उनको उनके अंदर रहते हैं, तो वो भी वेदरिंग करते हैं उन मटेरियल्स की। एंड फाइनली इज द केमिकल वन। तो केमिकल वेदरिंग में 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास: हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड कार्बोनेशन। देन द सेकंड वन इज इन द डिग्रेडेशन। फर्स्ट वन वाज वेदरिंग, उसकी हमने टाइप्स अभी देखी। उसके बाद है इरोजन। इरोजन में हमारे पास है अब्रेजन, attrition, cavitation, corrosion, deflation, hydraulic action and plucking. और फाइनली वी हैव मास मूवमेंट्स। तो मास मूवमेंट्स में हमारे पास दो तरह की मूवमेंट्स हैं, स्लो मूवमेंट्स हैं और रैपिड मूवमेंट्स हैं। स्लो मूवमेंट्स में हमारे पास है क्रीप एंड सॉलिफ्लेक्शन, एंड रैपिड मूवमेंट्स में हमारे पास है लैंडस्लाइड, एवलांच, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, रॉक स्लाइड और रॉक फॉल। So this was the whole classification of geomorphologic processes. तो अभी ये सारे जो चीज़ें हमने अभी इस क्लासिफिकेशन में पढ़ी हैं, इनके बारे में ही हम लोग फर्दर क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। सो वी विल कंटिन्यू ऑनवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।